In fact, we started with Ohm's law. Then resist many definitions like drift velocity, resistance, conductance, resistivity, conductivity. Then what will happen when resistors are connected in series and parallel? Then color code, then work done by electric current, then power in electric circuit, many things, right? But when it comes to 12 standard, we will be dealing with electric circuits. Now, when it comes to electric circuit, obviously we can divide the circuit into two types. One is simple circuit and another is complicated circuit. So if I say simple circuit, ultimately a circuit where you can predict right direction of current, that is simple circuit. A circuit where you cannot predict the right direction of current, then obviously it is going to be a complicated circuit. So when it comes to simple circuit, you're going to use Ohm's law, and using Ohm's law, definitely you can find current and potential difference across any part of the circuit. But if it is complicated circuit, obviously we cannot use Ohm's law. So we should go for extended law in current electricity. And extended law in current electricity, it is given by a scientist named Kirchhoff. So Kirchhoff, he was the second scientist after Ohm. He gave the extended law in current electricity, and that laws they're called as Kirchhoff laws of current electricity, or Kirchhoff law for steady current, right? So first, there are many terms. First, we'll go. We will discuss that terms. Then we'll get into Kirchhoff laws. So as I told you, you'll be dealing with current electricity. So first term here, we should know what is junction. So I can say junction, it is a point in electric circuit where the current will split. I repeat, a point in electric circuit where current will split will be called as junction. A point in electric circuit where current will split is called junction. Otherwise, it can be also defined as any point in an electric circuit where two or more conductors are joined, where two or more conductors are joined together is called junction. But is the junction clear? For example, a point which is connected by two or more than two wires, right? Suppose either current आया, let it be I, इधर गया I1, इधर गया I2. So ultimately, this is point where two or more conductors are joined, तो a junction है. Otherwise, this is the point where the current will split, तो भी a junction है. But is it clear? Yes. Yes. Okay. Next one, it is going to be loop. So closed path भी बोल सकते हैं इसको, या loop भी बोल सकते हैं. So loop means it is any closed path, या any closed
conducting, it means it will carry current. Conducting path in electric circuit, in electric circuit, yeah, electric network, whatever you can say, circuit or network, it's okay. So any closed conducting path in electric circuit or network, of course, is called loop. और ये जो closed path को we also call it as mesh. Mesh का मतलब होता है closed loop, right? Yes. For example, एक सेल है, इसके अक्रॉस हम लोग ने दो रेसिस्टेंस कनेक्ट किया. सो सेल का ईएमएफ ई है, ये R1 है, ये R2 है. सो अल्टीमेटली इट इज ए क्लोज्ड पाथ, एंड ये क्लोज्ड पाथ को हम लोग लूप बोलते हैं, राइट? एंड इट इज कैरिंग करंट, सो अल्टीमेटली इट विल बी कॉल्ड एज लूप. एंड द थर्ड, इट्स कॉल्ड ब्रांच. The third point, it's going to be called as branch. So branch मतलब basically दो जंक्शन के बीच में जो भी क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट होता है दो जंक्शन के बीच में, उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं. So it is any part, yeah, I would say branch is any part of the network that lies between two junctions. Between two junctions. Between two junctions. मतलब जो जंक्शन का बीच में जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क होगा उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, एक जंक्शन है, सपोज इधर एक वायर आया, राइट? इधर दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, देन आगे जाके फिर से मिल गया, एक बन गया, राइट? तो अल्टीमेटली ये एक जंक्शन है, बी एक जंक्शन है, तो इनका बीच में जो भी है उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ब्रांच. बच्चा, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके बच्चा, नोट डाउन कर लो इसको.
बच्चा फिनिश्ड? No, sir. Last. No, sir, no. ओके. Done, sir. बच्चा ऑल फिनिश्ड? Yes, sir. Yes. Yes. ओके. Sir, steady current मतलब क्या होता है? हाँ, वो भी नहीं. फोर्थ पॉइंट वही है बच्चा, स्टडी करंट. सो फोर्थ पॉइंट विल मूव टुवर्ड्स स्टडी करंट. स्टडी करंट का मतलब ये होता है बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है इट शुड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब मैग्नीट्यूड 1 एम्पियर है तो हमेशा 1 एम्पियर रहेगा, उसको हम लोग स्टडी करंट बोलते हैं. ठीक है. सो फोर्थ वन इट इज स्टडी करंट. ऑफ कोर्स इस हम लोग ये पढ़ते हैं ओम्स लॉ, देन किरचॉफ लॉ, देन आगे जाके हम लोग और 2 लॉ पढ़ेंगे, दैट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ, देन एम्पियर्स लॉ. ये सब स्टडी करंट के लिए एप्लीकेबल है, राइट. सो स्टडी करंट या करंट्स का मतलब ये है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट is independent of time or it remains constant. The magnitude of current is independent of time or it remains constant is called स्टडी करंट. अल्टीमेटली स्टडी करंट मतलब बच्चा डीसी करंट का बात कर रहा है, और डीसी में भी वेरिएबल नहीं. कौन सा करंट? कांस्टेंट डीसी को हम लोग स्टडी करंट बोलते हैं, राइट. सो आई वुड से इट इज एग्जांपल कांस्टेंट डीसी करंट is example for steady current. But is it clear? Yes. 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 अभी एसी में क्या होता है बच्चे, देखो ऐसा होता है साइकिल, मतलब करंट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, करंट चेंज हुआ, डायरेक्शन इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो ये एसी. डीसी में भी 2 है, एक इंक्रीज डिक्रीज, डायरेक्शन एक ही है, राइट. ये स्टडी नहीं, स्टडी वो है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, राइट. Yes. 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 So it should not vary with respect to time. So आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए this is time, this is current. So the magnitude of current it will remain constant like this. It is not varying with respect to time, will be called as steady current, right. So I hope all the 4 points are clear. So we'll move towards Kirchhoff laws for steady currents. Yes, sir. Next is Kirchhoff's laws for steady current भी बोल सकते हैं, या for of electric network भी बोल सकते हैं, electric circuit या network. Fine. Kirchhoff has given 2 laws. उसने 2 लॉ दिया है, एक करंट के लिए दिया है, इसको हम लोग किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, और एक वोल्टेज के लिए दिया है, उसको हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं. और जो करंट के लिए दिया है वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है,
right? So first we'll start with Kirchhoff's first law. अब ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग बहुत सारा नाम से बोलते हैं उसको, वी कैन कॉल इट एज केसीएल, एंड सबको पता है केसीएल मतलब क्या होता है. ऑब्वियसली इट इज किरचॉफ करंट लॉ है. अभी किरचॉफ करंट लॉ डील्स विद जंक्शन, इसके लिए उसको हम लोग जंक्शन लॉ बोलते हैं. एंड जंक्शन एक पॉइंट है, इसके लिए उसको हम लोग पॉइंट रूल बोलते हैं. सो वैसे तीन नाम है, एक केसीएल है, एक जंक्शन लॉ है, एंड ऑफ कोर्स एक पॉइंट रूल है. तो आपको कनेक्ट हो रहा है. किरचॉफ करंट लॉ को हम लोग जंक्शन में अप्लाई करते हैं तो जंक्शन लॉ. जंक्शन एक पॉइंट है, इसके लिए उसको हम लोग पॉइंट रूल बोलते हैं. इज इट क्लियर बच्चा? Yes. 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 विल मूव टुवर्ड्स स्टेटमेंट फर्स्ट. स्टेटमेंट एकदम सिंपल है. स्टेटमेंट ये बोलता है आप करंट का अल्जेब्रिक सम करेंगे किसी जंक्शन में, उसका वैल्यू 0 मिलेगा. इन सिंपल वर्ड्स, किसी जंक्शन में अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट 0 होता है, राइट? सो आई विल राइट द स्टेटमेंट. द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट सम ऑफ, क्योंकि करंट स्केलर है तो उसका अल्जेब्रिक सम होना चाहिए, वेक्टर सम नहीं कर सकते. ऑफ द करंट at any junction of an electric network is zero. किसी जंक्शन में आपका करंट का अल्जेब्रिक सम करेंगे, अल्टीमेटली वो 0 ही मिलेगा. फॉर एग्जांपल मैथमेटिक लिखना है तो ऑब्वियसली आई कैन राइट summation of current, right? So ultimately you may have many conductors here, so I can say I suffix I, या आप I suffix j ले लो वो भी चलेगा, where j will take the value from 1 to n. मतलब if there are n number of conductors, ultimately I can say first conductor से n conductor तक current addition करना पड़ेगा, and that will give you 0, right? So इधर चाहिए तो लिख सकते हैं where I suffix j is the current in the jth conductor at a junction having, of course, n conductors. Right बच्चा? बच्चा समझ में आया स्टेटमेंट? यस सर, समझा. हाँ, इसको अभी ब्रीफ देखेंगे, उसमें साइन कन्वेंशन है, देन एक एग्जांपल देखेंगे, सो इट विल बी मोर क्लियर. बच्चा स्टेटमेंट आई होप इट इज वेरी क्लियर. You can complete up to this much.
Finished? Yes, sir. ओके, सो हम लोग उसका साइन कन्वेंशन देखते हैं. ओके, सो we'll move towards sign convention. एकदम सिंपल साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन. फर्स्ट वन, अच्छा, जो भी करंट जंक्शन का तरफ जाता है, आई मीन द करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, उसको आपको पॉजिटिव लेना अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन. सो करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन या currents moving towards the junction are taken या considered to be positive. So currents moving or arriving towards the junction, moving arrive. We will go with one. Chalo. Toward junction. Moving towards the junction are considered to be positive. Are considered as positive. Is it clear, बच्चा? Yes, sir. ओके, मतलब फॉर एग्जांपल एक जंक्शन है, चलो इसको ए ले लो. अभी करंट जंक्शन का तरफ आ रहा है, तो आपको कल ही वो करंट का वैल्यू पॉजिटिव लेना है. फॉर एग्जांपल वो करंट आई है, तो आपको प्लस आई लेना है. इज इट क्लियर? सो सेकंड साइन कन्वेंशन तो आपको पता ही है. करंट करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, moving away from the junction, yeah, leaving the junction, moving away or leaving the junction. Are negative. Exactly. Junction are considered as negative. फॉर एग्जाम्पल एक जंक्शन है, उसको आप बी मान लो. अभी करंट दूर जा रहा है, तो इसको आपको माइनस आई लेना है. दैट्स इट. सो करंट्स मूविंग अवे और लीविंग द जंक्शन आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव. करंट्स मूविंग टुवर्ड्स और अराइविंग, सो थोड़ा चेंजेस लेंगे. चलो, मूविंग टुवर्ड्स और अराइविंग at the junction. Is it okay, बच्चा? Yes. Yes. Fine. अभी एक एग्जांपल लेंगे. चलो, मान लो कि एक जंक्शन है, उसको मैं जंक्शन सी लेता हूँ. This is connected by 5 wires with different resistance. हर एक का रेसिस्टेंस अलग है, सो ऑब्वियसली हर एक में करंट अलग होगा. से फर्स्ट वायर है जिसका रेसिस्टेंस R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5. इज इट ओके? Yes. ओके. Yes. मान लो ये जो फर्स्ट वायर है, इसमें करंट I1 है, इट्स मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन. इसमें I2 है, मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. इसमें I3 है, मूविंग टुवर्ड्स. इसमें I4 मूविंग अवे, एंड लास्ट वाला I5 मूविंग टुवर्ड्स. तो अब इस इक्वेशन लिखना है, तो मैं ये लिखूंगा साइन कन्वेंशन. I1 टुवर्ड्स जा रहा है, तो आपको प्लस I1 लेना पड़ेगा. ये दूर जा रहा है, तो माइनस I2 लेना पड़ेगा.
ये फिर से टूवर्ड्स जा रहा है तो प्लस I3 लेना पड़ेगा, ये दूर जा रहा है तो माइनस I4 लेना पड़ेगा, ये टूवर्ड्स आ रहा है तो प्लस I5। इन सब का एडिशन क्या होता है बच्चा? 0 होता है, राइट? अब ये जो माइनस टर्म्स है उसको मैंने दूसरा साइड में ले आया तो ऑब्वियसली वो भी प्लस होगा, तो यू गेट टर्म्स I1 I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2, I2 plus I4. राइट? तो अभी आपको ऑब्जर्व क्या करना है, ये I4 सब करंट अराइविंग करंट है या दे आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन है, सो आई कैन से दिस इज एंटरिंग करंट है, ये तीनों एंटरिंग करंट है, बराबर है बच्चा? yes So that will be equal to current leaving the junction. मतलब current entering into the junction will be equal to current leaving the junction, right? yes And आपको समझ में आना चाहिए कि ये कब होगा, जब we have got steady current. Yes or no बच्चा? yes steady Yes. current क्योंकि steady current नहीं है तो obviously ये दोनों equal नहीं होता है, क्योंकि सब जगह current अलग है. So in short steady current है तो there is no accumulation of charge at the junction. जितना चार्ज आता है उतना चार्ज जाता है. You agree with me? Yes. I repeat again, there is no accumulation of charge at the junction. The charge which is coming towards the junction, definitely it will, all the charges will move away from the junction so that current is steady. अभी कोई पूछेगा what is the physical significance of first law? So obviously it obeys significance. It obeys law of conservation of charge. क्योंकि जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा. Yes or no? There is no accumulation of charge at the junction. So I can say it obeys law of conservation of charge. Conservation of charge. That's it. I hope the first law is very clear, right? Yes. Okay, बच्चा complete कर लो इसको. सर I2 plus I4 आएगा. क्या बोल रहे हो बच्चा? yes I, equal to क्या आ गया I4 हाँ right बच्चा, right, I4 होता है, बराबर है. Okay, fine.
Done, sir. हो गया सबका बच्चा? Done, sir. Yes. Okay. बच्चा एज फार एज बोर्ड इज कंसर्न, इसमें सिंपल क्वेश्चन ही आता है केसीएल से, बट आप नीट का देखेंगे, इनफैक्ट केसीएल से भी हम लोग बड़ा बड़ा सर्किट से किधर भी करंट निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं, बट बोर्ड का लेवल पे यही आएगा, मतलब सिंपल क्वेश्चंस आता है, मतलब एक स्क्वायर है तो उसमें इधर 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें 5 एम्पियर आ रहा है, राइट, एंड इधर 1 एम्पियर नीचे आ रहा है, तो पूछेंगे इधर करंट कितना है, तो ऑब्वियसली आप इसको पकड़ो, ये जंक्शन में 3 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर नीचे जा रहा है, तो इधर आ रहा है 2 एम्पियर, राइट, Yes. ये 2 एम्पियर और 2 एम्पियर में से फिर से 1 एम्पियर जा रहा है, तो नीचे करंट आएगा 1 एम्पियर, राइट। Yes. Yes. अभी ये 1 एम्पियर और ये 5 एम्पियर मिलके इधर 6 एम्पियर आएगा, अभी ये 1 एम्पियर और 6 एम्पियर मिलके 7 एम्पियर होगा, 7 सो करंट ampere. हियर विल बी 7 एम्पियर, ऐसा कुछ आना है, Yes, yes. राइट। तो कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, तो आप जिधर जिधर आप करंट के बारे में बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल इधर आप पहले बता सकते थे क्योंकि 2 करंट दिया है तो तीसरा मिलता था, इधर नहीं बता पाते थे क्योंकि इधर का करंट इधर का करंट इधर का करंट नहीं दिया था, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करेंगे, इज इट ओके? Yes, sir. Yes. Fine, so we'll move towards the second law. In fact, second law, it's very important, and it is, जैसा फर्स्ट लॉ है, जैसा इजी है फर्स्ट लॉ, उतना ही थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, राइट। सो विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड लॉ, दैट इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स second law. Fine. But Kirchhoff's second law, as I told, it deals with voltage. So ultimately it is called as KVL. And इसको हम लोग जब अप्लाई करेंगे, so we will not apply across junction. Definitely will be applying it across loop, right? तो पूरा close path में इसको अप्लाई करते हैं, इसके लिए इसको हम लोग लूप लॉ बोलते हैं। एंड आपको पता है लूप को हम लोग मेश भी बोलते हैं, therefore it is also called as mesh law. So basically इधर भी 3 नाम है, एक KVL है और एक लूप लॉ है और एक मेश लॉ है, राइट। आपको मीनिंग तो ऑलरेडी पता है, राइट। राइट बच्चा? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we'll move towards statement. तो स्टेटमेंट ये बोलता है, in any closed loop of an electric network, the algebraic sum of potential differences, and आपको पता है potential differences मतलब it is product of current and resistance होता है, and the electromotive forces, that is EMFs, is equal to 0. That is, in any closed loop of an electric circuit या network, electric network, the algebraic sum of potential difference, the algebraic sum of potential differences that is PDs, right? So आप चाहे तो ब्रैकेट में ये लिखो या इधर लिख सकते हो P dot D, राइट। बराबर है बच्चा? एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V is equal to IR होता है, so ultimately it is products of current and resistance होगा, products
of current and resistance. एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ये ब्रैकेट वाला टर्म, करंट एंड रेसिस्टेंस. And the EMF applied and electromotive forces. Obviously, it is going to be EMFs. So be bracket में देता problem. EMFs applied is equal to 0. बच्चे समझ में आया? स्टेटमेंट समझ में आया? Yes, sir. समझा. Yes, sir. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का एडिशन करेंगे, अलजेब्रिक एडिशन क्लोज पाथ में, वो भी 0 मिलेगा, राइट? तो अभी मैथमेटिकली लिखना है तो ऑब्वियसली मैं ऐसा लिख सकता हूं, समेशन ऑफ वी plus summation of E, of course, in a closed loop. In a closed loop, summation of V, summation of E will be equal to 0. बराबर है बच्चा? Yes. Yes. अभी मैंने बताया कि V को आप IR लिख सकते हो, तो मैं summation of V का बदले में IR लिख सकता हूं, plus summation of E is equal to 0. राइट? Yes. Yes. अभी बच्चा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. देखो, ये जो ई है अल्टीमेटली ये ईएमएफ ऑफ द सेल होता है, राइट? अभी Yes. ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब क्या होता है बच्चा? ईएमएफ ऑफ द सेल ऑब्वियसली इट इज एनर्जी गिवन बाय द सेल टू मूव ए यूनिट चार्ज वंस अराउंड कंप्लीट सर्किट. मतलब एक सेल एक यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्किट मूव करने के लिए जितना एनर्जी देता है वो ई होता है. यू एग्री विद मी? Yes. अभी मैं जब बोलता हूं समेशन ऑफ ई, इसका मतलब ये होता है ई मतलब इट इज एनर्जी गिवन बाय वन सेल होता है. जब मैं समेशन ऑफ ई बोलता हूं तो क्लोज पाथ जो हम लोग ने कंसिडर किया उसमें जितना भी सेल है, मैं फिर से बता रहा हूं, वो क्लोज पाथ जो कंसिडर किया उसमें जितना भी सेल है वो कितना एनर्जी देता है, दैट इज गिवन बाय समेशन ऑफ ई है. यू एग्री विद मी? Yes. Yes. मतलब ई मतलब क्या होता है बच्चा? एनर्जी गिवन बाय वन सेल या एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वन सेल. बट समेशन ऑफ ई क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द सेल्स इन दिस क्लोज्ड पाथ व्हिच यू आर कंसीडर्ड, राइट? मतलब ये Yes. समेशन ऑफ ई जो है बेसिकली मेरे को देता है एनर्जी प्रोड्यूस्ड. बराबर है बच्चा? Yes. Yes. It is understood. Energy produced in this closed loop, right? Yes. अभी बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. Energy loss रहता है. Energy loss. हाँ, एग्जैक्टली. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? It is the energy used across the resistor to move a unit charge. मतलब एक यूनिट चार्ज पे एक रेसिस्टर के अक्रॉस मूव करने के लिए जितना एनर्जी यूज या स्पेंड करना पड़ेगा करंट को, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज एनर्जी यूज्ड अक्रॉस द रेसिस्टर है. बराबर है? Yes. Yes. समझा. हाँ, अभी सुनो, V क्या होता है बच्चा? एनर्जी यूज्ड बाय वन रेसिस्टर है. V क्या होता है? एनर्जी यूज्ड बाय वन रेसिस्टर. तो बताओ समेशन ऑफ V क्या होता है बच्चा? Energy used by all the resistors. In the हाँ, resistors. exactly. Energy used by all the resistor in this closed loop. Closed loop. इसका Yes. मतलब ये देता है एनर्जी यूज्ड, राइट? अभी आपको पता, अभी जितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा उतना एनर्जी यूज होगा, तो ऑब्वियसली ये अब मेरे को देता है एनर्जी लेफ्ट. तो बताओ जितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उतना एनर्जी यूज हुआ, तो एनर्जी बचेगा कितना बच्चा? Zero. इज इट ओके? इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, दैट इज इट ओबेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? एक्चुअली लास्ट में लिखना चाहिए बट मेरे को इधर ही एक्सप्लेन करने का था तो मैंने इधर ही लिख दिया. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. Yes.
Okay, so physical significance, yes. This law, it obeys law of conservation of energy. बच्चा पहला वाला क्या था? चार्ज था. Charge. अभी वाला क्या है? एनर्जी है. Energy. Energy. राइट. कंप्लीट करो बच्चा इसको. Done, sir. It's done, right? Yes, sir. Okay. बाकी सबका हो गया बच्चा? सबका? Yes, sir.
Yes, sir. Fine. So we'll move towards sign convention. So obviously इधर जैसा KCL में 2 साइन कन्वेंशन है, इधर 4 साइन कन्वेंशन, 2 EMF के लिए है एंड ऑफ कोर्स 2 पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. Fine. So next is sign convention. Sign convention. First one. We will do it for EMF. चलो. For EMF. Fine. बच्चों मान लो. सर स्क्रीन ब्लर है. Just a second. Just a second. अभी हुआ क्या just? यस. Okay. Okay. So बच्चों सुनो. एक क्लोज्ड पाथ विजुअलाइज करो क्योंकि इधर लूप आता है. सो एक क्लोज्ड पाथ विजुअलाइज करो, राइट. एंड वो क्लोज्ड पाथ में यू कंसीडर 2 पॉइंट्स, वन ए एंड ऑफ कोर्स बी. एंड ए और बी का बीच में आप एक सेल कनेक्ट करो. ऑब्वियसली सेल पास 2 टर्मिनल्स होता है, एक हाई और एक लो. से प्लस ले लो और ए माइनस एंड इसका EMF E है. इज इट ओके? यस सर, समझा. हाँ, अभी बताओ बच्चे, क्लोज्ड पाथ को मैं एक तो क्लॉकवाइज ट्रेस कर सकता हूँ, क्लॉकवाइज ट्रेस, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकता हूँ, बराबर है. तो मैंने क्लॉकवाइज Yes. ट्रेस किया तो आई विल बी मूविंग फ्रॉम A to B. If I trace it in anti-clockwise direction, then I will be moving B from to B A. to A, A to A. right? So suppose मैंने A to B move किया, A to B, from A to B. So ultimately, if I move from A to B, but it is understood, जब मैं A to B बोलता हूं तो आपका मन में आना चाहिए कि मैंने उसको क्लॉकवाइज ट्रेस किया है, right? यस. जब मैं Yes. बोलता हूं फ्रॉम B to A, तो मतलब आपको मन में आना चाहिए Anti-clockwise. एग्जैक्टली. सो इधर ट्रेस किया है क्लॉकवाइज CL के, इधर ट्रेस किया है AC के, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट. सो जब मैं A to B जाता हूं, दोनों देखिए मैं सेल को ट्रेस करता हूं पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव, राइट. सो मैं फिर से बता रहा हूं, व्हेन आई ट्रेस इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई विल बी मूविंग फ्रॉम A to B. When I move from A to B, then I will be tracing the cell from negative terminal to positive terminal. Yes or no? पॉजिटिव चार्जेस है. क्या बोल रहा है बच्चा? सर पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे ना. नहीं, हाँ पॉजिटिव लेंगे, बट हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो लास्ट में बचता है पॉजिटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव बचता है पॉजिटिव. सो हियर EMF will be taken as positive. Positive. Yes. सो आप उसको प्लस E लिखेंगे. सपोज मैंने एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस किया तो आई विल मूव Negative. exactly. So I will move from B to A. Then cell will be Positive to traced from negative. exactly. So EMF will be negative. Is it okay, बच्चे? ये तो easy है, right? सर सेल अगर उस तरफ कनेक्ट, दूसरी तरफ कनेक्ट हुआ तो बच्चा आपको कुछ नहीं देखना है, आप लास्ट में क्या बचता है वो देखना है. पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव गए तो EMF पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव गए तो EMF नेगेटिव. यस. मतलब कुछ देखना ही नहीं है, लास्ट में क्या बचता है वो देखना है बस. सर अगर सेल ऐसा हो गया, इस तरफ पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव, तो क्या- एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया. हाँ उल्टा हो जाएगा, ये Yes. ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा. Yes. See, आपको ये याद रखना है, व्हेन यू ट्रेस सेल यू विल नॉट सी द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट का बारे में नहीं देखेंगे, खाली पोलैरिटी देखेंगे. क्या देखेंगे? पोलैरिटी. आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं
या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, वो देखना है आपको. इज इट ओके? Yes. Yes. फाइन. सो देखो स्टेटमेंट ये लिखेंगे, इफ सेल इज ट्रेस्ड फ्रॉम, इसके लिए लिख रहा हूं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, then EMF is considered to be positive, negative to positive. So obviously it is going to be positive. Next, second case, if cell is traced, आप traced लिख सकते हो या traversed लिख सकते हो, it's up to you. If cell is traced from positive terminal to negative terminal, then EMF is considered, considered to be negative. But is it okay? Yes. Fine. चलो हम लोग EMF के लिए तो कर लिया. अभी देखेंगे सेकेंड केस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस फॉर PD. तो इधर भी वही आपको करना है, एक लूप विजुअलाइज करना है, लूप, एंड लूप में 2 पॉइंट लेना है, एक A और एक B. अभी A और B का बीच में एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे हम लोग, जिसका वैल्यू R होगा. बट इधर आपको करंट का डायरेक्शन भी प्रिडिक्ट करना पड़ेगा. तो मैं मान लूंगा कि करंट जा रहा है A to B. लेट I बी द वैल्यू ऑफ करंट. इज इट ओके बच्चा? Yes. फाइन. अभी फिर से हम लोग इसको पहला A to B ट्रेस करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज. सो फ्रॉम, इधर लिख दो, चलो, फ्रॉम A to B. बच्चा मेरे को ये बताओ, सपोज मैं A to B ट्रेस किया, डोंट यू थिंक आई विल बी ट्रेसिंग द रेसिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट? Yes. Yes. बच्चा मैं जिधर जा रहा हूं उधर ही करंट जा रहा है. मैं जिधर रेसिस्टर को ट्रेस कर रहा हूं उधर ही करंट जा रहा है. तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस को लेना है नेगेटिव. मतलब ये बनेगा माइनस V. माइनस V के बदले में माइनस I इंटू R लिख सकते हैं. इज इट ओके? एक बार फिर से बता, नहीं समझा. बच्चा देखो, ये रेसिस्टर है और करंट ऐसा जा रहा है. तो अभी मैं ये रेसिस्टर को मैं A to B ट्रेस कर सकता हूँ या B to A ट्रेस कर सकता हूँ. सपोज Yes. मैं A to B कर रहा हूँ, A to B मतलब मेरा डायरेक्शन ट्रेसिंग का और करंट का डायरेक्शन क्या है बच्चा? सेम है ना. Yes. 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 जब दोनों सेम है तो आपको नेगेटिव लेना है. क्या लेना है? नेगेटिव. Negative. जब करंट इधर है और आप उल्टा जा रहे हो, करंट इधर है आप उल्टा जा रहे हो, एग्जैक्टली आपको लेना है पॉजिटिव. इज इट ओके? Yes. Yes. फाइन. सो बच्चा इधर देखो, करंट का डायरेक्शन नहीं ले रहा हूं मैं, बट इधर मेरे को करंट का डायरेक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा. सो इट इज, इफ इट इज ट्रेस्ड फ्रॉम B to A, obviously potential difference will be positive and which will be plus IR हो जाएगा. Is it okay? Yes. अभी लिखना है तो कैसा लिखेंगे देखो. If resistor is traced या traversed in the direction of current, in the direction of current, then potential difference is taken या considered, taken as negative. Bacha, is it okay? If resistor is traced against या opposite, I would say in the direction, opposite, सर ब्लर हो गया फिर से. Yes. बराबर.
ओके, दिख रहा है बच्चा? Yes, sir. Okay, so if resistor is placed in the direction opposite to the direction of current, then potential difference is taken as positive. But is it okay? All the 4 points? Yes. Fine, complete कर लो बच्चे. सर ए टू बी जो है पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव क्यों आया? बच्चा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो हम लोग पॉजिटिव लिया, तो एनर्जी यूज्ड नेगेटिव लेना पड़ता है, राइट? वही साइन Yes. कन्वेंशन के हिसाब से लिया है वो. मतलब एनर्जी प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव लिया है तो एनर्जी यूज्ड नेगेटिव आता है, ऐसा. राइट?
यस सर। वो अभी हम लोग उसका मतलब एग्जांपल देखेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। डन सर। डन, ऑल डन, सबको हो गया? Yes, sir. ठीक है, चलो Yes, एक sir. एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो एक सिंपल केस देखेंगे और एक कॉम्प्लिकेटेड केस देखेंगे। फाइन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चे, सर्किट तो हम लोग 11th में भी देखा है। एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू आर है, राइट, एंड इसका अक्रॉस एक सेल कनेक्ट करेंगे, दैट इज विद ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर, राइट, ये प्लस ये माइनस। तो डोंट थिंक इधर करंट इन द सर्किट हम लोग ने ओम्स लॉ से प्रूव किया था, I is equal to E upon R plus R, याद है आपको? Yes. यस सर। Yes, sir. ऑब्वियसली अभी हम लोग KVL से प्रूव करेंगे। किससे प्रूव करेंगे बच्चा? KVL का। सो KVL का कुछ रूल्स है, जैसा कि फर्स्ट जब भी आपको लूप लिया है, लूप को नाम देना है। सो यू हैव टू नेम द लूप। सो मैं इसको A ले रहा हूं, इसको B ले रहा हूं, इसको C, इसको D। तो मैंने नाम दे दिया उसको ABCD। फर्स्ट यू हैव टू नेम द लूप। इज इट ओके? Yes, sir. फिर से ब्लर हो गया ना? यस ब्लर। ये सब कैसे हो रहा है? नेम द लूप। लूप या लूप जो भी है, जितना बड़ा लूप रहेगा तो आप नेम द लूप करेंगे, राइट। सो जो इधर एक ही लूप है तो नेम द लूप, बहुत सारा लूप है तो नेम द लूप्स, राइट। उसका बाद क्या करना है बच्चा? यू हैव टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो सेकंड, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट्स। मतलब आप करंट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना है। वो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, आप प्रिडिक्ट करेंगे। जब भी प्रिडिक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? प्रिडिक्ट बोलो या चूज बोलो, राइट। देन आप हमेशा थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे। कॉमन सेंस इन द सेंस, आपको पता है ना करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, बराबर है बच्चा? Yes. Yes. तो मैं मान रहा हूं कि ये जो सेल है इट विल प्रोड्यूस करंट आई। तो इधर करंट आई बाहर आता है तो अंदर भी आई आना चाहिए, राइट। सो इधर कुछ ब्रांचिंग नहीं है तो एवरीवेयर करंट इट्स गोइंग टू बी आई ओनली। आई होप यू गेटिंग। Yes. राइट, ब्रांचिंग होता तो ऑब्वियसली करंट के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता था। सो इधर मैंने प्रेडिक्ट किया करंट इट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इज इट ओके बच्चा? Yes. 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 फाइन। तो मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही प्रेडिक्ट करना है, आप उल्टा भी कर सकते हो, राइट। अभी मैंने इसको ऐसा प्रेडिक्ट किया तो मेरे को एंड ऑफ द डे क्या मिलेगा? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे, मेरे को करंट पॉजिटिव मिलेगा। करंट पॉजिटिव मतलब, करंट पॉजिटिव मतलब ये है तुमने जो डायरेक्शन प्रेडिक्ट किया वो राइट है। तो करंट नेगेटिव आया मतलब तुमने जो करंट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट उल्टा किया है वो गलत है। तो आपको बताना पड़ेगा सिंस वैल्यू ऑफ करंट इज नेगेटिव, दिस इज नॉट द डायरेक्शन, इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। डिड यू गेट दैट? Yes. Yes. ओके। अभी सपोज करंट को प्रेडिक्ट करने का बाद, चलो इधर तो सब करंट आई है, कुछ जगह क्या होता है I1 होता है, I2 होता है, I3 होता है, I4 होता है। तो जितना ज्यादा वेरिएबल्स लेंगे उतना तकलीफ होगा,
तो वेरिएबल्स हमेशा कम लेना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इधर इधर करंट आई है तो स्प्लिट हुआ, तो आप क्या लेंगे, इधर I1 लेंगे, इधर I2 लेंगे, बराबर है ना। yes, yes, Yes. वेरिएबल्स कितना हो गया बच्चा, 3 हो गया। देखो 1 तीन 2 हो गए। 3, तो ये Yes. क्या होगा, मैं ये सर नहीं बोल फिर रहा से कि ब्लर हो आंसर, रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आंसर नहीं आएगा व्हेन यू टेक मोर वेरिएबल्स, बट डोंट यू थिंक जब वेरिएबल्स आप कम लेंगे तो यू विल गेट आंसर क्विकली। समझ में आया। Yes. yes, Yes. आप इमेजिन करो, जो मैंने अभी एक सर्किट बनाया है उसमें I1 I2 और I था, बराबर है। yes, Yes. don't you think instead of I2 I would have taken I1 I minus I1। yes, तो Yes. वेरिएबल्स कितना होता था बच्चा, 2. एग्जैक्टली मतलब मैंने इसका बदले में चाहे तो I माइनस I1 लिख सकता था, तो अल्टीमेटली मेरे पास वेरिएबल दो ही होगा, एक I और एक I1, राइट। yes, मतलब आगे Yes. जाके आप जितना कम वेरिएबल्स ले सकते हो उतना कम वेरिएबल्स लेना है, राइट। सो reduce the number of variables, reduce the number of variables using, of course, KCL, that is Kirchhoff current law। तो याद रखना, जितना कम वेरिएबल्स ले सकते हैं उतना कम वेरिएबल्स लेना है। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, राइट। उसके बाद कितना लूप है वो देखो, राइट। सो काउंट count the number of loops, count the number of loops, मतलब कितना लूप से देखो। उसके बाद कौन सा लूप इंडिपेंडेंट है, मतलब इजीली कौन सा लूप आंसर आपको देगा वो देखो, क्योंकि सब लूप में आप केवीएल अप्लाई केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारे इक्वेशन मिलेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना लूप, मतलब कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स है। सो बेटर काउंट द नंबर ऑफ लूप्स से बेटर डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स, डिटरमाइन द number of independent loops, राइट। अभी अज्यूम करो 10 लूप आया आपको इंडिपेंडेंट, तो आपको 10 लूप पे केवीएल अप्लाई नहीं करना है, आपको देखना है कि कौन सा लूप मेरे को जल्दी आंसर दे सकता है, राइट। राइट। सो अप्लाई केवीएल टू all independent loops, इंडिपेंडेंट लूप्स। बच्चा लूप्स बहुत सारा हो सकता है, तो आपको ये देखना कि कौन सा लूप मेरे को जल्दी आंसर दे सकता है, राइट। सो ऑब्वियसली वो ही लूप भी दे सकता है जो इंडिपेंडेंट रहेगा। इज इट क्लियर। बच्चा इज yes, इट क्लियर। हाँ, एक बार लूप Yes. मिला बच्चा, केवीएल अप्लाई किया, मतलब यू विल बी गेटिंग इक्वेशन। सो बाद में क्या करना है आपको, वो इक्वेशन जो मिलता है आफ्टर अप्लाइंग केवीएल उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो solve the equation obtained simultaneously। वो मैं बता दूंगा क्योंकि हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, राइट। साइमल्टेनियस, फाइन। सेवेंथ वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आपको जो सॉल्व करने के बाद करंट वेरिएबल पॉजिटिव आ रहा है, देन नो प्रॉब्लम, बट नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली मैंने बोला है कि करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट लेना पड़ेगा, राइट। इफ this is very important, if current variable is negative, then
conventional current is in, of course, opposite direction. Current is in opposite to the chosen direction. जो डायरेक्शन आपने चूज किया है उसका ऑपोजिट है. कब बच्चा? नेगेटिव है. बट इफ इट इज पॉजिटिव देन देयर इज नो प्रॉब्लम. बच्चा, इज इट क्लियर? Yes. फाइन. चलो हम लोग फिर से शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना. नेम द लूप्स. चलो, इट इज डन. नेम कर दिया हम लोग ने, ए बी सी डी डाल दिया. देन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट. प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट वो भी कर दिया हम लोग ने. हम लोग ने बोला कि करंट आई है और वो इससे जाता है. देन रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. सो इधर तो एक ही है तो रिड्यूस करने का सवाल ही नहीं उठता है. देन फोर्थ वन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स. इधर एक ही लूप है तो इधर भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है. अप्लाई केवीएल टू ऑल इंडिपेंडेंट लूप्स. चलो मैंने केवीएल अप्लाई किया. तो बच्चा, जब भी केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसा ट्रेस कर रहे हो. क्लॉकवाइज कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, राइट? सपोज मैंने क्लॉकवाइज ट्रेस किया, क्लॉकवाइज लाइक दिस. तो आपको बताना पड़ेगा इन लूप. आप ए से शुरू कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा ए, राइट? जिधर से शुरू करेंगे वो लिखना पड़ेगा. तो आप जा रहे हो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए. तो आपको लिखना पड़ेगा ए बी सी डी ए. ए से शुरू, ए से खत्म, मतलब वो लूप है, राइट बच्चा? Yes. अभी बताओ ए टू बी कुछ है क्या उधर? सेल या रेसिस्टर? No. ए टू बी No. नहीं, नहीं. सो बी टू सी, देखो आप जा रहे हो बी टू सी, Resistance. करंट भी उधर ही जा रहा है. करंट रेसिस्टर है बट करंट भी उधर जा रहा है, आप भी उधर जा रहे हैं. तो आपको अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस आता है नेगेटिव. Negative. 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 करंट कितना है? आई. IR. रेसिस्टेंस कितना है? Yes, आर. एग्जैक्टली. अभी बताओ सी टू डी कुछ है? No. No. डी टू ए पहला रेसिस्टर है देन सेल है. पहला रेसिस्टर का बात करेंगे. आप जा रहे हो उधर, करंट जा रहा है उधर, सो इसका मतलब नेगेटिव. Minus Current. IR. एग्जैक्टली, आई आर, राइट? देन सेल को ट्रेस कर रहे हैं माइनस टू प्लस, तो आपको लिखना है प्लस ई. Plus Plus E. E. आप पहुंच गए ए पे, ए से शुरू, ए से खत्म, तो ए वैल्यू होता है 0. इज इट ओके? Yes. अभी मेरे को बताओ, इन केस मैंने उसको ट्रेस किया उल्टा, उल्टा ट्रेस किया तो क्या मिलेगा बच्चा? ऐसा ट्रेस करके बताओ क्या मिलेगा आपको? Minus Minus E E plus आएगा. IR. Minus E plus IR plus IR. Plus Equal to IR. 0. minus माइनस ई प्लस आई आर प्लस Plus आई IR आर equal to इज 0. इक्वल टू 0. सो बच्चा, डोंट थिंक ये इक्वेशन 1 2 3 उसको ए साइड में लेके आया. ए डोंट थिंक आई विल बी गेटिंग दिस वैल्यू. Yes. Yes. तो मेरे को बताओ, ट्रेस क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, विल इट मेक एनी डिफरेंस? No. No. नो. No. तो मतलब आपका मर्जी, आप ट्रेसिंग किसी डायरेक्शन में कर सकते हैं. एक तो सब एंटी क्लॉकवाइज करो, नहीं तो सब क्लॉकवाइज करो, नहीं तो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी, आपका मर्जी. सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. इज इट ओके? Yes. Yes. अभी बताओ, ये माइनस ई को मैंने ए साइड लिया तो दोनों थिंग विल गेट ई इज इक्वल टू आई आर IR प्लस plus आई IR. स्मॉल आर. कैन आई टेक आई कॉमन? Yes. आर प्लस आर. आई I एम equal to इंटरेस्टेड. E आई upon R plus R. खत्म ना बच्चा. ई अपॉन आर प्लस आर. अभी मेरे को बताओ, Yes. ये जो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव. Positive. Positive. इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन प्रिडिक्ट किया वो राइट है. सपोज मेरे को नेगेटिव आता तो मतलब क्या है? उल्टा लेना पड़ता था. आई होप इट इज क्लियर. Yes. Yes. बच्चा, मेथड समझ में आया? Yes. ओके, कंप्लीट करो इसको. कंप्लीट दिस.